everyone. I'm Shifa Sadav, second year student of BJMC, and it's truly an honor to present before you all. We are privileged to welcome a visionary whose journey continues to inspire a countless young minds, a change maker in the truest sense. He has collaborated on major projects with governments, set up job-ready courses for APJ Abdul Kalam and set up centers of excellence in law, data analytics and smart manufacturing. His work bridges the gap between the industry and academics, improving training, placement, and also creating a future ready opportunity. None other than Muhammad Tala Khan Sir, the Director of Industry Partnership at Invertis University and a Vice Chairman of Innovation and Incubation Foundation of Invertis University. Good afternoon, sir. I hope you're doing well, sir. May I start this conversation and take everyone to an inspiring journey and motivates those who look up to you as a role model? Yes, of course. Thank you so much, sir. Sir, you have an experience, a profession experience of 14 years, and your leadership and innovation skills had a big impact on the industry and education. So, what's one thing you wish that university could focus more on to prepare students for rapidly changing job markets? See, Shifa, as far as my experience is concerned and my observations with various universities, so the major challenge with the university is the universities are not able to make their students employable. And even government of India is also focusing a lot in building that environment where we can, provide more and more jobs to the students who are pursuing various programs in the universities. So universities must focus on the type of education delivery that they must prepare students as per the requirements of the industry, number one. Two. So how they can bring that culture, they need to inculcate real time, industry skills within the curriculum so that students can ensure their employability after their curriculum gets over. Thank you so much, sir. Sir, as I've mentioned that you have we have set up the centers of excellence in law, data analytics, and smart manufacturing. Right. So, what do these centers have impact on student career? See, if a university adopt this culture, which I was telling you, that there is a need of an industry environment within the campus. So you need to definitely establish such kind of center of excellences within the university, which are focusing on emerging technologies. What impact it will create is a student who is coming to take admission in a university and you are having center of excellence facility with it, that too in the emerging area which you are mentioning, like in the Internet of Things, data analytics, machine learning, artificial intelligence, or smart manufacturing, whatever the emerging technologies are prevailing in the market right now. So students from the very first year, so they will get an experience where they will be interacting with the real-time industry experts, and after devoting certain time in the project, suppose they have devoted 6 months of their time in the project, and that too under the mentorship of industry experts. So they will earn an internship certificate using the support of these center of excellences. So once they complete their whole journey in the program, they will be having 6 to 7 internship certificates where they have done some real-time projects under the guidance of industry experts. So this is where you will find a difference in a good university and a university who are still lacking in focusing this kind of environment. Okay, sir. Sir, as you have worked with the APJ Abdul Kalam Technical University as a member of Board of Studies, so what parameters do you have followed while developing the curriculars or skill-based courses? At that time when we were the part of that Board of Studies at अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उस वक्त में बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये होता था कि हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड academic institutions. So because I know how academic institutions work and how industries work, so there was a challenge in bridging the gap. People have tried lot many options, and they invited certain uh, training partners who were delivering some training
to the students, but that was for a very limited period of time. At the end of the day, what we found is it was not solving the actual purpose. On the other side, when we interacted with the industries, so again they were not able to accommodate those many number of students who are there within the university. So what we thought is, when we held meetings with Abdul Kalam Technical University, how to inculcate that environment. The challenges were there and it was well known to us. So we decided to inculcate the OJTs, on-job training modules within the curriculum. And the modules were decided and developed in such a way that you can approach to the nearby industries, right? So that a bunch of students may attend that particular on-job training in consultation with the nearby industries. So the more focus was only on, bridging the gap in reality, not in terms of simple lines. ओके सर. सर, जैसे अभी हमने देखा कि आप एकेडमिक्स में प्रेजेंट थे, बट हमें पता है कि आप इंडस्ट्री में बहुत प्रेजेंट थे और आपने बहुत से इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया है. सो कैन यू शेयर वन एक्सपीरियंस और क्रिएटिव आइडिया एंड चेंजेस दैट हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड द इंडस्ट्री? Okay, so I can share with you a story that happened to us, and I was working on one of the project. Fortunately, in 2012, we visited one of the Metal Handicraft Service Center, which was working under Ministry of Textile. And I was there along with my students. We were just visiting their facility, and the general manager of that Metal Handicraft Service Center, Dr. Ravindra Sharma ji, so he had shown me various departments. तो अब मैं वहाँ पर जब डिपार्टमेंट्स में गया तो वहाँ एक डिपार्टमेंट था, बिकॉज मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है तो दे हैव अ पॉलिशिंग यूनिट्स, राइट? और द पीपल वर्किंग देयर इनसाइड दैट डिपार्टमेंट, so lot of emery was being there, which was collected within the department, and it got stuck to the humans also, even to the faces of the people who were working there. So this was a challenge which I had observed, and I had communicated the same to general manager कि ये सब चीजें हो रही हैं कि जो इंसान आया अभी और ये सुबह तो बिल्कुल नहा धो के सही आया था और जब ये यहाँ से निकल रहा है तो इसको फेस ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे. ऐसी लॉट ऑफ एमरी इज कनेक्टेड. सो तो आप देखते भी होंगे कि वो उसका रंग ही बदल जाता है. तो हमने कहा कि ये दो पर्पस है, एक तो इसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिर आपने कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई यूनिट लगाया हो कि ये एमरी जो ये कलेक्ट हो रही है विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन दैट केबिन, ये बाहर चली जाए. तो ही सजेस्टेड मी दैट यस वी हैव प्रीवियसली डिस्कस विद दिस मिनिस्ट्री, एंड हमने डस्ट कलेक्शन यूनिट्स लगाए, सेंट्रलाइज डस्ट कलेक्शन सिस्टम बनाया था. बट द चैलेंज इज कि अभी जैसे मेरे यहाँ 10 मेटल पॉलिशिंग यूनिट्स हैं और एट अ टाइम 5 पर मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो वो 5 जो मेटल पॉलिशिंग यूनिट्स है वो वर्क नहीं कर रहा. बट जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन से और सारा लोड है वो तो मेरा सेंट्रलाइज होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा है, फिर वो तो सभी जगह से आ रहा है. सो इकोनॉमिकली मुझे इसमें बेनिफिट नहीं लगता है. सो ही आस्क्ड मी कि हाउ यू कैन डू इट. तो बीइंग अ इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड हैविंग दैट एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्री, तो हमने उनको अपने स्टूडेंट के साथ सजेस्ट किया कि ठीक है, हमें प्रेशर डिफरेंस ही तो क्रिएट करना है. सो दैट वाज अ टेक्निकल टर्म दैट वी हैड डिस्कस विद हिम. सो हमने कहा ठीक है, वी विल क्रिएट इट. सो आई वेंट बैक विद माय स्टूडेंट्स, वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट. तो हमें समझ में आया कि क्यों ना हम इंडिया के अंदर ऐसा काम करते हैं कि जो सेंट्रलाइज डस्ट कलेक्शन सिस्टम है उसको पोर्टेबल डस्ट कलेक्शन में कन्वर्ट करता है. तो उनका जो प्रॉब्लम था कि सारे मशीन्स अगर एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर एक मशीन काम कर रहा है तो उसी पर वो पोर्टेबल डस्ट कलेक्शन सिस्टम काम करने के लिए बना रहे. तो वी हैव सजेस्टेड देम, वी हैव डिजाइंड इट. उसके बाद हमने उसको डिजाइन किया, उनके मेटल पॉलिशिंग यूनिट्स के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया. तो सारा जो कैलकुलेशंस हम इंजीनियर को करना चाहिए वो हमने करके उनको डिलीवर किया. एंड व्हेन वी प्रेजेंटेड आवर प्रोटोटाइप, so they were very happy, and the Ministry of Textile even they have appreciated our work. But उसमें भी मैं जो देखता था हमारी लर्निंग्स थी उसमें, जो मुझे काफी अच्छा वो प्रोजेक्ट लगा था अपने उसमें. जब हमने वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया एज अ प्रोटोटाइप, सो लॉट मैनी चैलेंजेस वी फेस.
जहां हमने मिस कर दिया कि हमने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बना दिया, बट ऑन द अदर साइड वी वर वी रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि हमने जिस वर्कर के लिए बनाया था उसकी अवेयरनेस और उसकी रिक्वायरमेंट को हमने बहुत ज्यादा रीड नहीं किया था। हमारा जो इनिशियल फेज में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए था उस प्रोजेक्ट पे, वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। वो हमें कब पता चला, व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड इट, क्योंकि वो जो लोग थे वो लोग लेबर थे, so they used to eat something and what they did is just to make fun of that chamber। उनको पता था वो प्रेशर डिफरेंस है, हवा आ रही है जहां से काम हो रहा है, क्योंकि वो एमरी कलेक्ट होता था अंदर चैम्बर्स के अंदर जो हमने बनाए थे। दे यूज टू थ्रो वट एवर वॉज देयर इन देयर हैंड, राइट। तो फिर हमें समझ आया कि वो ब्लॉक हो जाता था कुछ टाइम बाद, तो जो एफिशिएंसी थी हमारी उस पोर्टेबल डस्ट कलेक्शन की वो कम हो जाती थी। तो हमने देखा कि आप जिसके लिए बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर समझ लिया, लेकिन जिसके लिए बना रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस जो आपके पास है उसके लिए। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी good project that we did, and we had got a good funding from ministry also। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे आपने मेंशन किया दैट यू वर्कड विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड योर प्रोफाइल शोज दैट आपने और भी मेजर प्रोजेक्ट्स में काम किया जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो कैन यू शेयर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू नेविगेटेड इट? Okay, so that was altogether a different experience। That was not to deliver certain product for an organization। So International Labour Organization is working very hard to create that awareness with the people, like artisans are there who are involved। So हमारा जो task था, we need to develop modules for the artisans to bring that awareness कि International Labour Organization आपके लिए कितना काम कर रहा है। तो हम लोगों को एचिंग, एनग्रेविंग और लैकरिंग, 3 मॉड्यूल्स को हमें डेवलप करना था। तो वो मॉड्यूल्स को डेवलप करने के लिए हमें प्रोजेक्ट मिला था। तो उसमें सबसे बड़ा टास्क यही था कि आपको डे टू डे बेसिस पे आर्टिशियंस के साथ मिलना पड़ता था। अदरवाइज आपको वो कंटेंट, वो इनपुट और वो नॉलेज नहीं होगा, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करना था। सो दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स विद देम, बट देयर वाज नो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। तो रिकॉग्निशन भी नहीं था। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि आई नीड टू डू लॉट ऑफ सर्वेज। मुझे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ आर्टिशियंस काम कर रहे हैं, और जिस मॉड्यूल पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें कौन से आर्टिशियंस हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जर्नी को आगे बढ़ा चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता था। तो मैं किताब लेकर, कॉपी लेकर जाता था और रियल टाइम में उनके उन यूनिट्स में बैठता था। सो देयर वाज अ वेरी बिग चैलेंज वेयर दे वर वर्किंग, राइट। तो हम लोगों को फिर वो मोटिवेशन भी मिलता था कि इनके साथ हम बात कर रहे हैं, ये तो अपना सारा जीवन ही यहाँ लगा देते हैं। सो हमारे लिए तो 1-2 घंटा ही बैठना उस एनवायरमेंट में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। लैकरिंग में भी बहुत केमिकल्स और ये सब यूज होते थे। तो वो सब चीजें रियल टाइम में उनसे सीखा, उनसे नोट किया। वी जस्ट जोड इट डाउन, सो मुझे 6 महीना 7 महीना लगा वो सर्वे करने में, और वो सारा मैंने नोटबुक बनाया। फिर उसके हमने रियल टाइम पिक्चर्स लिए, उसको फिर हमने मॉड्यूल में डेवलप किया। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से मेरा उसमें मुलाकात हुआ। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैव वर्किंग विद ILO। ओके सर, जैसे आपने बताया कि वर्किंग विद 2 मेजर प्रोजेक्ट्स वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको आर्टिशियंस ढूंढने पड़े जो कि आपको पता नहीं था, एंड टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम मैनेजेबल था। तो सर, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड वर्किंग ऑन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्पेशली व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग? सी, मेरे मोटिवेशन का अगर आप बात करेंगे तो एक चीज मैंने सीखा है कि आई यूजुअली एंजॉय वट एवर वर्क इज असाइंड टू मी। तो मैं ये देखता हूँ कि एक तो लर्निंग आपको मिलती है, एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग योर वर्क तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। और फिर जब आप एक जर्नी में इनिशियली जब आप एक स्टेप इन करते हैं, तो तब आपके पास बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि मैं सही जा रहा हूँ कि मैं गलत जा रहा हूँ। और बहुत लोग आपको मिलेंगे, बिलीव मी, कि जो आपको कहेंगे यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। इन बोथ द प्रोजेक्ट्स आई हैड मेट लॉट मेनी पीपल्स हु जस्ट demotivated me and my team डायरेक्टली बाय सेइंग कि अरे क्यों कर रहे हो ये सब प्रोजेक्ट्स, वो आर्टिशियंस के जमाने से चल रहे हैं, आप क्यों इसमें चले जा रहे हो, क्यों इनके लिए काम कर रहे हो, राइट। गवर्नमेंट का इतना फोकस नहीं है, बट आई नो द रियलिटी। अगर मैं भी नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि हम एंजॉय करते हैं काम को, ठीक है। और फिर आप जब निकल जाते हो ना, और एक स्टेप इन कर लेते हो और लोगों से मिलते हो,
तो आपका पर्पस बदल जाता है, और जब पर्पस बदल जाता है तो आपको फिर इंजॉय करते हो। मुझे आज भी याद है 11-12 बजे तक हम लोग काम करते थे, सुबह फिर चले जाते थे, उनसे मिलते थे, तो कम्प्लीटली अ डिफरेंट एनवायरनमेंट वाज क्रिएटेड। Okay, sir. Sir, as the director of industry partnerships, what strategy do you use or do you follow to build a strong and sustained collaboration with industries? ऐसा कोई स्ट्रेटेजी तो अभी मैं नहीं फॉलो करता हूँ। ओनली वन थिंग विच आई कीप इन माइंड इज इफ यू नो स्टेब्लिश रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, विद एनी अदर एजेंसी और एनी इंडिविजुअल, राइट, तो आप उसको लॉन्ग टर्म रखो, ये मेरा मानना है। ट्रांसपेरेंट रहो, और यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑल्सो, यू नीड टू लिसन देम। आप जब साथ में इस तरीके से जुड़े रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, तो आई बिलीव इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद द टीम, वेदर आई एम इन वर्क विद देम और नॉट, Okay, इट sir. डजंट मैटर। ओके सर। सर जैसे भी हमने अभी जितना हमने सुना आपसे कि आप एकेडमिक में थे, देन यू शिफ्टेड टू इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू स्ट्रेटेजिक प्लानर। सो व्हाट लीडरशिप लेसन्स यू हैव लर्नड ऑल अलोन एंड व्हाट एडवाइस would you give to industrialists and academicians to follow this path? See, academicians are very sound in theories, right? अगर आप उनसे बोलेंगे कि दिस इज अ कंटेंट वेयर यू नीड टू डिलीवर अ टॉक, so they are very sound and good in delivering the talks, right? But when it comes to the implementation part or application part, so there is a challenge, right? The challenge is ki academicians lack in implementation because might be lack of resources are there, that environment is missing, they have different targets to fulfill every day, right? They have to take sessions. तो वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मैंने देखा अपनी जर्नी में भी कि जब तक मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में था डायरेक्टली और असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब रोल पे था, तो हम लोग नहीं कर पाते थे। बट व्हेन आई इंटरेक्टेड विद पीपल हु बिलोंग्स टू इंडस्ट्री बैकग्राउंड और मैं इंडस्ट्रीज में गया, तो वहां मैंने देखा कि दे आर नॉट गुड इन डिलीवरिंग टॉक्स, बट दे आर गुड इन इम्प्लीमेंटेशन। तो दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ फॉर माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। मुझे मुझे अच्छे से याद है कि वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर आई हैड विजिटेड मोर देन 90 इंडस्ट्रीज, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम द मैनेजमेंट अगेन एंड अगेन। वो जो मैंने कहा ना, साथ वाले लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं आप पे जब आप काम करते हो, तो वो सब चैलेंजेस भी और बैरियर्स को भी तोड़ के निकलना पड़ता है। तो ये मेरी लर्निंग है, और मैं सब यही कहूंगा कि अगर आइडिया भी है तो वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। Okay, sir. Sir, as a vice chairman of Innovation and Incubation Foundation, what advice do you have for young entrepreneurs who are looking to start their ventures? यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं बोलूंगा कि आज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट इज नॉट ओनली फोकसिंग टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी, बट हम एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाएं उसका भी एक क्लियर कट पाथ है कि आप जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। मैं अक्सर कहता हूँ कि जॉब लेने वाले ना बनो, जॉब देने वाले बनो, तो ही ये समस्या का समाधान बन सकता है। और ये सब चीजें आप करना चाहते हो तो आपकी जो आसपास जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने खुद रियल टाइम में फेस किया है, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर आओ। वंस यू स्टार्ट डिलीवरिंग दोस सॉल्यूशंस, तो वो आपको पता चलेगा कि उसका टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है और भी लोगों को भी वो प्रॉब्लम आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नियर बाय रीजन्स में देखो कहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्यूबेटर्स को एस्टेब्लिश किया है, और कहाँ आपके बिजनेस आइडियाज जो आपने बनाए हैं वो कहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ, प्रॉपर फंडिंग्स के साथ आपको वो नर्चर करने का मौका मिल सकता है। तो कम अप विद गुड आइडियाज, रियल टाइम प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली हम लोग भी यहाँ बैठे, हम लोग भी काफी मदद करते हैं बच्चों की। ओके सर। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा, हमें बहुत पता चला कि आप एकेडमिक्स में थे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर इंडस्ट्रीज में आपके बहुत सारे कोलैबोरेशंस थे विद गवर्नमेंट एंड मेजर प्रोडक्ट्स में, फिर आप अभी आपका खुद का स्टार्टअप टीम है, तो इट शोज कि आप बहुत ही ज्यादा मल्टीपल रोल्स में एक्टिव हो एंड ऑल्सो आप सोशली भी कनेक्टेड हो। So, sir, how do you balance the multiple roles from academic advising to corporate partnerships and innovation projects? When it comes to multiple job roles, मेरा जो फोकस रहता है वो टीम बिल्डिंग पर रहता है, ठीक है। और क्योंकि आप अगर मल्टीपल जॉब रोल से इंडिविजुअली हैंडल करोगे तो यू विल फील डाउन।
तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरी टीम में किस तरीके के स्किल सेट्स हैं और किस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ. सो आई यूजुअली असाइन द टास्क टू दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स दैट पर्टिकुलर मेंबर है. तो वो मेरे लिए काफी हद तक काम आसान कर देता है. उसके बाद भी मैं ये कहूंगा, बीइंग अ लीडर ऑफ द टीम, यू विल फेस लॉट मैनी चैलेंजेस जो सिचुएशन पे आएंगे ही आएंगे, एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल दोस चैलेंजेस एंड कन्वर्ट देम टू द इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर योर टीम. तो ये सब चलता रहता है. सर, आपने इतने कम टाइम पे, इतने कम एज में आपने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में, उतने बहुत बड़े बड़े चीज जो कि आज के अगर हम जनरेशन में देखें तो बच्चे नहीं कर पाते हैं. तो सर, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग प्रोफेशनल हु आर एमिंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी? देखो, अभी तो बहुत कुछ करना है. अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं. अभी तो वो जो लर्निंग्स है अभी वो चल रही हैं. मेरा ये कहना है कि देखो, लाइफ में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जुड़े हैं, एज एन इंडिविजुअल भी बात करें, नेवर थिंक ऑफ कि आपने ऐसा सोच लिया है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 साल जुड़ गया हूँ या 15 साल जुड़ गया हूँ तो मैंने बहुत कुछ कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हर दिन, हर महीना और हर साल आप जाके अपने आप से ये सवाल जरूर करो कि व्हाट वैल्यू एडिशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट वैल्यू एडिशन यू आर गिविंग टू एज एन इंडिविजुअल. जब आप ये थॉट प्रोसेस अपने मन में बिल्ड करते हो, थोड़ा सा शुरू में तो चैलेंज आएगा, लेकिन एक बार आप इसे अडेप्ट कर लोगे तो आपको खुद मजा आने लगेगा कि हाँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ. तो मेरा यंग प्रोफेशनल्स के लिए तो यही एडवाइस है कि जिस भी जगह काम करना है या खुद का भी काम करना है, तो एज एन ऑनर और एज एन एम्प्लॉय ये जरूर सोचो कि व्हाट वैल्यू एडिशन और व्हाट वैल्यू कंट्रीब्यूशन यू आर डिलीवरिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपने अगर जिस दिन सोचा है तो आप बहुत कुछ करोगे. और ईमानदारी से काम करो, कमिटमेंट से बिल्कुल ना हटो, डेडिकेशन से काम करो. ये सब फैक्टर्स आपकी लाइफ में खुद आ जाते हैं. Thank you so much, sir. Sir, it has been truly insightful to hear your journey and stories and the work you have done. Thank you so much, sir, for your valuable time which you have given to us. You're welcome, Shifa, and I would like to thank you and visionary leadership of your department जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, स्टूडियो में बुलाया, आप लोगों के बीच में बात रखने का मौका दिया. इसके लिए बहुत धन्यवाद.